والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کانگریس نے جاری کیا بی جے پی امیدوار کا اسٹنگ ویڈیو، الیکشن کمیشن کی نشر کرنے پر پابندی۔ ہندو سنگھرش سمیتی نے پولیس انتظامیہ اور مسلمانوں کو کیوں دیا 2 ماہ کا وقت۔ مہاراشٹر پولیس کے ایڈیشنل ڈی جی پی ہمانشو رائے نے کی خودکشی۔ پٹنہ بدھ گیا بم دھماکہ معاملہ، فریقین کی بحث مکمل، 25 میں فیصلے کی تاریخ مقرر۔ سخت حفاظتی بندوبست کے درمیان گڑگاؤں میں ادا کی گئی نماز جمعہ۔ اس بالی ووڈ اداکارہ نے ہندوستانیوں کو بتایا جانوروں سے بھی بدتر۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سرکاری بنگلوں میں رہنے والے سابق وزرائے اعلیٰ کی مشکلات میں اضافہ۔ سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ برادری کا تذکرہ، مذہب کی بنیاد پر ووٹ کی اپیل نہیں، سپریم کورٹ کا بیان۔ اناؤ اجتماعی عصمت دری معاملہ، سی بی آئی نے ممبر اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر پر لگے ریپ چارج کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل غزہ میں ظلم ڈھا رہا ہے، ناکہ بندی فوری ختم کی جائے، یو این این کا مطالبہ۔ ٹرمپ اور کم جونگ کے درمیان عالمی امن کے لیے 12 جون کو سنگاپور میں خصوصی ملاقات۔ بندر نے بادشاہ کو ہلاک کر کے ملک کا پورا مستقبل بدل ڈالا تھا۔ اسرائیل کے 28 لڑاکا طیاروں نے شام پر حملے میں حصہ لیا، 27 میزائل داغے، روس کا بیان۔ سوڈان خرطوم میں نائجیریا کے سفارتکار کی لاش برآمد۔ پاکستان باکمال لوگ، لاجواب خدمت، پی آئی اے کے 24 پائلٹس جعلی ڈگریاں رکھتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر میسورو سے ہے۔ کرناٹک میں انتخابی تشہیر کے آخری روز کانگریس نے بی جے پی امیدوار اور ریڈی برادران کے قریبی شری راملو کا اسٹنگ ویڈیو جاری کر کے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اس مبینہ ویڈیو میں بی شری راملو سپریم کورٹ کے سابق جج کے بیٹے کو رشوت دینے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ ریڈی برادران سے جڑے ناجائز کانکنی معاملے میں ان کے حق میں فیصلہ آئے۔ حالانکہ ریاست کے الیکشن افسران نے ٹی وی چینلوں کو احکامات دیے ہیں کہ اس ویڈیو کو نشر نہ کیا جائے۔ سی ای او آفس کے ایک افسر نے کہا کہ اس ویڈیو کے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھیج دی گئی ہے اور نیوز چینلوں کو اسے نشر نہ کرنے کا احکامات دیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کلپ کو کرناٹک کے وزیر داخلہ رام لنگا ریڈی نے جمعرات شام کو ایک پریس کانفرنس میں جاری کیا تھا۔ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو میں سپریم کورٹ کے جس جج کے بیٹے کو رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس جج نے اپنے ریٹائرڈ ہونے سے ایک دن قبل ریڈی برادران کی کانکنی کمیٹی سے منسلک معاملوں میں فیصلہ دیا تھا۔ کرناٹک کانگریس کے کارگزار صدر دنیش گنڈو راؤ نے ٹویٹ کیا کہ رشوت کی ڈیل کیسی ہوئی، اسے ثابت کرنے کے لیے کئی ویڈیوز ریلیز کیے گئے ہیں۔ حالانکہ بی جے پی نے اس اسٹنگ آپریشن کلپ کو فرضی بتاتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ بی جے پی صدر امت شاہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسی فرضی اسٹنگ ویڈیو پر بھروسہ نہ کریں۔ شری راملو کو داغی کانکنی کاروباری اور وبلا پورم مائننگ کمپنی اور ایم سی کے مالک جناردن ریڈی کا قریبی مانا جاتا ہے۔ اب خبر گروگرام سے۔ گروگرام ضلع انتظامیہ پولیس نے ہندو مسلم فریقین کو منا کر بھلی جمعہ کی نماز پر تنازع ٹال دیا ہو، لیکن آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ اس طرح بتایا جا رہا ہے ہندو شدت پسند تنظیموں کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ تنازع کم ہونے کے بجائے مزید بڑھے گا، کیونکہ سیکت ہندو سنگھرش سمیتی نے ایک بار پھر وارننگ دی ہے۔ سیکت ہندو سنگھرش سمیتی کے سربراہ مہاویر بھاردواج نے ایک نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمیتی نے مختصر مدت کے لیے متبادل انتظام کی حمایت کی ہے، تب تک وہ اپنے انتظامات کو ٹھیک کر لیں۔ یہ مدت 1.5 سے 2 ماہ کی ہوگی، اس کے بعد ایک بھی سرکاری عوامی مقامات پر نماز پڑھنے سے انہیں روکنا چاہیے۔ انتظامیہ نے نماز پڑھنے کے لیے 23 مقامات نامزد کیے ہیں۔ انتظامیہ کو اس کے لیے ہم نے بولا ہوا ہے، ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم کروا لیں گے۔ یہ جمہوریت ہے جس میں غلط چیز کو ٹھیک کروانا عوام کے ہاتھ میں ہے۔ بھاردواج کے مطابق ہم نے بولا ہے کہ ہم 2 ماہ بعد ان 23 مقامات پر نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ انتظامیہ اپنی مجبوری بتا رہی تھی، ہم سے گزارش کی تھی کہ ہم بالکل سے کھلے میں نماز نہیں روک سکتے، امن و امان خراب ہو سکتا ہے۔ ہندو امن چاہتا ہے، امن چین قائم رکھنا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے انتظامیہ کی بات تسلیم کر لی ہے۔ ہم یقین ہے کہ انتظامیہ طے وقت کے بعد دباؤ ڈالے گی، حکومت سست پڑے گی تو ہم اس مسئلے کو عوامی تحریک بنائیں گے۔ اب خبر مہاراشٹر سے۔ ممبئی پولیس کے سب سے سرگرم افسروں میں سے ایک ہمانشو رائے نے اپنے ہی گھر پر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ رائے کینسر سے متاثر تھے اور اپنی بیماری سے پریشان چل رہے تھے۔ 1988 کے بیچ کے آئی پی ایس افسر ہمانشو رائے اس وقت مہاراشٹر پولیس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے طور پر تعینات تھے۔ اطلاعات کے مطابق ہمانشو رائے سنیتی عمارت کے 4تھے منزل پر واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ پر خون میں سنے ہوئے ملے۔
उन्हें फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। हिमांशु राय 1993 मुंबई बम धमाका केस, सहाफी जे.डे कत्ल केस, कसाब से पूछगछ और अंडरवर्ल्ड से मुतालिक कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में शामिल रहे हैं। अब खबर मुंबई से। बिहार के मशहूर शहर व बुद्धिस्टों के मजहबी मकाम बुद्धगया में होने वाले बम धमाके मामले में आज फरीकैन ने बहस मुकम्मल कर ली, जिसके बाद अदालत ने फैसला सादिर करने के लिए 25 मई की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले जमीयत उलमा की जानिब से मुकर्रर करदा दिफाई वकला ने 9वीं सरकारी गवाहों से जराह की और दौरान बहस अदालत के सामने दलाइल पेश किए। ये इतला आज यहाँ मुंबई में मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। गुलजार आजमी ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन उमर सिद्दीकी, शफी सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद शकीलुद्दीन कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, कमालुद्दीन अंसारी, हैदर अली आलम अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी को जमीयत उलमा कानूनी इमदाद फराहम कर रही है और उनकी पैरवी के लिए एडवोकेट सूर्य प्रकाश सिंह, एडवोकेट इमरान गनी और एडवोकेट वासिफुर रहमान खान को मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने गवाह इस्तिगासा से जराह के साथ साथ हतमी बहस में भी हिस्सा लिया। खुसूसी एनआईए जज मनोज कुमार सिन्हा की अदालत में मुकदमे की समाअत मुसलसल जारी थी। बिलाखिर फरीकैन की बहस का इख्तिताम अमल में आया, जिसके बाद अदालत ने फैसला सादिर करने के लिए 25 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। अब खबर गुरुग्राम से। साइबर सिटी गुड़गांव में नमाज तनाज़े के दौरान सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान 23 मकामात पर आज नमाज जुमा अदा की गई है। नमाज जुमा को लेकर हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों और मुसलमानों के दरमियान तनाव न हो, इसलिए पुलिस और इंतजामिया पहले से हाई अलर्ट थी। मुस्लिम फरीक से बात करके जिला इंतजामिया ने 23 सरकारी मकामात पर खुले में नमाज के लिए तय किए हुए हैं, जबकि पहले सिर्फ 9 मकामात दिए जा रहे थे। इससे कबल जिला इंतजामिया और पुलिस ने मीटिंग करके 23 मकामात तय किए हैं। यही नहीं, एहतियातन 76 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। हरियाणा की तारीख में पहली बार है जब नमाज के लिए इंतजामिया को इतने बड़े पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने पड़े हैं, क्योंकि दूसरे फरीक की तरफ से गड़बड़ी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुस्लिम फरीक की लड़ाई लड़ रहे वाजिद खान, नेहरू युवा संगठन के सदस्य शहजाद खान ने बताया कि पुलिस ने नमाज के लिए मुतबादिल इंतजाम के तौर पर पहले 9 मकामात तय किए थे, लेकिन हमारे एतराज़ के बाद उसे बढ़ाकर 23 कर दिए गए हैं। खबर मुंबई से। मोनाली ठाकर अब अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। गैर ममालिक में हिंदुस्तान की शबीह पर बोलते हुए मोनाली ने दूसरे मुल्क के लोग हिंदुस्तान को रहने के लायक जगह नहीं मानते, उनका यही कहना है। मोनाली ने ये बातें बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कही। मोनाली ने कहा, मैं सफ़र करती रहती हूँ, शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरे मुल्क के लोग हिंदुस्तान को रहने के लायक जगह नहीं मानते, इससे मन को दर्द होता है। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, यहाँ इतनी तहजीब है, हम उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम अपने मुल्क और वरासत की तौहीन कर रहे हैं। कहने को हम सब एडवांस हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं। जंगलीपन जानवरों का अखलाक होता है, लेकिन हम तो जानवरों से भी बदतर हैं। मोह के दागे के नेशनल अवार्ड पा चुकी मौलानी रियलिटी शो राइजिंग स्टार में जज पैनल में नजर आती थी। अभी हाल ही में उस शो का दूसरा सीजन खत्म हुआ है और एक वो मशहूर सिंगर भी हैं। अब खबर लखनऊ से। सुप्रीम कोर्ट के हालिया अहकाम ने सरकारी मकानों और बंगलों में रहने वाले साबिक वज़राए आला की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। अदालत उज़्मा के हालिया हुक्मनामे के मुताबिक साबिक चीफ मिनिस्टरों को सरकारी बंगलों में रहने का कोई हक नहीं है। इस पेशरफ से इन गैर सरकारी तंजीमों के लिए भी दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं, जो सरकारी रहायशगाहों से अदबी, सकाफती और तालीमी खिदमत अंजाम दे रही है। हिंदुस्तान की अदलिया के हर फैसले की इस्तकबाल और पासदारी के लिए हर शहरी को तैयार रहना चाहिए और उसको खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए। ये मानना है डॉक्टर अम्मार रिजवी का, जो एक माहिर तालीम होने के साथ साथ तालीमी, सियासी और समाजी मैदानों में काम कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हुए ये भी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि साबिक वज़राए आला का मकान देना दुरुस्त है, क्योंकि इतने अहम ओहदे पर रहते हैं कि अगर उन्हें वहाँ फौरी तौर पर सड़क पर खड़ा कर दिया जाए या ये लोग आम लोगों के दरमियान रहें, तो कल मालूम पड़े कि इन लोगों ने जिनके खिलाफ फैसला किया है वो उनके दरवाजे पर पहुँच जाए। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को चैलेंज करने वाली पिटीशन आज मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानोलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने राष्ट्रीय हिंदू सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि एक बार इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समाअत के दौरान कहा कि समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा कम्युनिटी का जिक्र उनकी फलाह व बहबूदी की यकीन दहानी करने या ऊपर उठाने की बात करने को मजहब की बुनियाद पर वोट की अपील नहीं कहा जा सकता। जैसे ही समाज शुरू हुई, चीफ जस्टिस ने दरखास्त दहिंदा से सवाल किया कि वो किस हैसियत से यहाँ आए हुए हैं।
उन्होंने कहा, मैं एक वोटर हूं, मैं इंतखाब को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के मंशूर पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। जस्टिस मिश्रा ने इस पर कहा कि इलेक्शन लड़ने के हक को आइन के आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अब इंतखाबात में 48 घंटे बचे हैं, इस हालत में कोई मुदाखलत भी नहीं की जा सकती। अब खबर उन्नाव से। उन्नाव इज्तिमाई असमदरी मामले में सीबीआई ने बीजेपी मेंबर असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर के जरिए नाबालिग लड़की के रेप के इल्जाम में तस्दीक की है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि मुलजिम एमएलए ने माखी गांव में 4 जून को नाबालिग के साथ अपने घर में रेप किया था। मुलजिम के साथ ही शशि सिंह के अहम किरदार की भी तस्दीक हुई है। बता दें कि 4 जून 2017 को माखी गांव के शहीद शुभम और उसका साथी कानपुर के चौबेपुर के रहने वाले ओदेश तिवारी अगवा करके ले गए। मुतासिरा की मां ने माखी थाने में मामले की तहरीर दी, जिसमें मेंबर असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर पर पड़ोस के खातून के जरिए बहाने से घर बुलाकर रेप करने और उसके बाद उसके गुर्गों के जरिए इज्तिमाई असमदरी करने का इल्जाम लगाया, लेकिन पुलिस ने तब रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वाज़ेह हो कि 11 जून 2017 को मुतासिरा ने अदालत का रुख किया। कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम ओदेश तिवारी, शुभम तिवारी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़िलिस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी में जारी इसराइली फ़ौज की इंतकामी कार्रवाइयों और इलाके की नाकाबंदी को बदतरीन जुल्म करार देते हुए महसूरीन गज़ा के खिलाफ जारी मसालिम बंद कराने का मुतालबा किया है। फ़िलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ का कहना है कि गज़ा में पुरअमन और निहत्ते मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करना और ममनुआ असलहा से उन्हें मुंतशिर करने का कोई आईनी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। उनका कहना है कि गज़ा की पट्टी के अवाम कई साल से बदतरीन नाकाबंदी का सामना कर रहे हैं। हालिया अरसे के दौरान फ़िलिस्तीनियों ने तहरीक हक वापसी के लिए पुरअमन मुजाहिरे शुरू किए हैं और इसराइल इन पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है, जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाय हो रही हैं। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ अपनी मुलाकात की तारीख का ऐलान कर दिया है और एक ट्वीट में इत्तला दी है कि इनके दरमियान 12 जून को सिंगापुर में तारीखी मुलाकात होगी। उन्होंने जुमेरात को ट्वीट किया है कि हम दोनों इस मुलाकात को आलमी अमन के लिए खुसूसी लम्हा यानी मौका बनाने की कोशिश करेंगे। तवक्को है कि सदर ट्रंप जजीरा नुमा कोरिया को जोहरी हथियारों से पाक करने और शिमाली कोरिया को जोहरी हथियारों और बैनुल-बर्रा आज़मी मिसाइलों की तैयारी से बात रखने के लिए किम जोंग उन से तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने इस मुलाकात की तारीख और मकाम के इंकिशाफ के लिए व्हाइट हाउस की किसी तर्जुमान के बजाय खुद ही बयान जारी किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने गुज़िश्ता 2-1 माह के दौरान में इस मुलाकात की तैयारियों के सिलसिले में शिमाली कोरिया का 2 मरतबा दौरा किया है। ट्यूनिस। तहकीकी मुताला किया जाए तो ऐसे कई मौक़े का इंकिशाफ होता है जब जानवरों ने किसी मकाम की तारीख के सिलसिले को ही बदल डाला। इस हवाले से यूनान में पेश आने वाला वाक़या अनूठी अहमियत का हामिल है, जहां एक बंदर ने बादशाह को हलाक करके मुल्की मंजरनामे को बदल दिया। इस तरह मज़कूरा बंदर यूनान की तारीख पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाला जानवर बन गया। साल 1917 ईस्वी में पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया और फ्रांस ने यूनान के बादशाह कुस्तुनतीन अव्वल को जर्मनी की हिमायत करने के सबब मुस्तफ़ा होने पर मजबूर कर दिया। इसके नतीजे में बादशाह अपने बेटे अलेक्जेंडर अव्वल के हक में दस्तबरदार हो गया। अलेक्जेंडर अव्वल की जानिब से तख्त संभालने के बाद नया बादशाह अपने वजीर अल्फिशिरियोस वेंजुलियोस के जेर असर आ गया, जो फ्रांसीसियों और बरतानियों के लिए अपनी शदीद हमदर्दी के बाइस जाना जाता था। पहली जंग अजीम के इख्तिताम के बाद वजीर वेंजुलियोस ने अलेक्जेंडर की मुआफ़क़त से एक अस्करी मनसूबा वज़ा किया। इसका मकसद वसीअतर यूनान का क़याम था। इस मनसूबे के जरिए यूनान उन इलाकों को जम करने के लिए कोशा हुआ जहाँ यूनानी नज़ादी आबादी रहती थी। फ्रांस और बरतानिया की सपोर्ट से यूनान ने 1919 में अपने अफवाज को पहली जंग अजीम में शिकस्त से 2-4 उस्मानियों के अराज़ी की जानिब भेजा। इस दौरान यूनान ने येवनी साहिल पर मौजूद कई इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश। बदकिस्मती से बादशाह अलेक्जेंडर अव्वल वसीअतर यूनान का ख्वाब हकीकत में तब्दील होता नहीं देख सका। अक्टूबर 1920 में वो एक अलमनाक हादसे से दो चार हुआ और फिर 4 हफ्तों के अंदर दुनिया से रुखसत हो गया। 2 अक्टूबर 1920 को बादशाह महल के बाग में अपने पसंदीदा कुत्ते के साथ मामूल की सैर कर रहा था। इस दौरान कुत्ते ने वहां मौजूद एक बंदरिया पर हमला कर दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अलेक्जेंडर ने अपने कुत्ते को पीछे खींचने की कोशिश की ताकि इस लड़ाई को खत्म किया जा सके। ताहम एक दूसरे बंदर की लड़ाई में शामिल हो जाने के बाद वो हो गया जिसका सोचा भी नहीं गया था।
मज़कूरा दूसरे बंदर ने जब देखा कि अलेक्जेंडर लड़ाई की जगह की जानिब बढ़ रहा है तो उसने छलांग लगाकर बादशाह पर हमला कर दिया। उसके बाद बंदर ने अलेक्जेंडर के जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर काट लिया, जिसमें बादशाह की गर्दन और टांग खास तौर पर मुतासिर हुई। इस मौके पर मौजूद लोग बादशाह को बचाने के लिए मुदाखलत पर मजबूर हो गए। अगले चंद रोज के दौरान अलेक्जेंडर की तिब्बी हालत नुमायां तौर पर बिगड़ गई। उसके जिस्म बिलखुसूस टांग के जख्म खराब हो गए, यहाँ तक कि बादशाह की पिंडली काट देने की नौबत आ गई और फिर इसी तरह बीमारी में वो हलाक हो गया। अब खबर मॉस्को से। रूस की वज़ारत दिफा ने इसराइल के शाम पर फिजाई हमले की तफसील जारी की है और कहा है कि इसराइल के 28 लड़ाका तैयारों ने शामी इलाकों पर फिजाई बमबारी में हिस्सा लिया है और उन्होंने शामी अहदाफ पर 70 मिसाइल दागे हैं। इंटरफैक्स खबरसां एजेंसी के मुताबिक रूसी वज़ारत दिफा ने जुमेरात को एक बयान में कहा है कि इसराइल ने 28 F-15 और F-16 लड़ाका तैयारों को हमले में इस्तेमाल किया है। उन्होंने फिजा से जमीन में मार करने वाले 60 मिसाइल शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर दागे थे। इनके अलावा 10 मजीद जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी दागे गए हैं। रूस का कहना है कि शाम के फिजाई दिफाई निज़ाम ने इनमें से निफ्स से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया था और बाकी मिसाइलों से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब खबर दुबई से। नाइजीरिया की हुकूमत और सूडान की पुलिस के ऐलानात के मुताबिक सूडानी दारुल हुकूमत खुर्तूम में नाइजीरिया के एक सिफारतकार के घर से उसकी लाश बरामद हुई है। मकामी मीडिया का कहना है कि मज़कूरा सिफारतकार को गला काट कर मौत के घाट उतारा गया है। सूडानी पुलिस ने जुमेरात के रोज जारी बयान में कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि एक मुजरिमाना कार्रवाई का नतीजा है और इस वाक़े की कोई सियासी वजह नहीं है। नाइजीरिया की उमूर खारिजा की वजारत ने सिफारतकार की मौत की तस्दीक की है। दूसरी जानिब खबरों से मुतालिक वेबसाइटों का कहना है कि नाइजीरियन सिफारतकार को छुरे से हमले का निशाना बनाया गया, ताहम सूडानी पुलिस और नाइजीरिया की हुकूमत ने इसकी तस्दीक नहीं की। याद रहे कि एक बरस के अंदर सूडान में मुर्दा पाया जाने वाला ये दूसरा सिफारतकार है। आज की आखिरी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी के इदारे के एक अहम अहदेदार ने अदालत आलिया में इंकिशाफ किया कि PIA की 24 पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, जबकि 3 निजी एयरलाइंस की CEOs को भी अदालत ने तलब किया है, जिनमें वजीर आजम अब्बासी भी शामिल हैं। इस इंकिशाफ के बाद PIA की हिफाजत और सलामती के उसूलों पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। इदारे के नुमाइंदे साजिद इलियास भट्टी ने अदालत आलिया को बताया कि अमले के दीगर 66 अरकान भी जाली डिग्रियों के हामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि PIA के 451 पायलट्स में से 319 की तालीमी इस्नाद की तस्दीक हो गई है, जबकि 124 की तस्दीक का अमल जारी है। 7 जाली डिग्री के हामिल पायलट्स ने अदालत से हुक्म इम्तिनाई लिया हुआ है और वो काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।